Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and I'm here live and I welcome all of you who are live over here with me in this session. So let me just go on Facebook and see who is live because on Facebook I can see people live but not via my mobile. So I'll just go and check and then we can begin with the session. Okay. So there's still time, there's still 1 minute and I'm just going to wait for 1 minute and then I can start. Okay. So, well, in the morning, I asked you people to, you know, narrate or comment or leave something. Walaikum Assalam Ali, Dr. Tanveer. So, I'm fine. So, I just said that I was having a memory flashback and I was sharing my travels of Dubai. So I asked you people, whoever has something to share. So for that purpose, I left a post on Facebook. But I guess due to Ramzan, no one, commented on it. So now after Iftar, probably you can go on that post and you can comment about your travels. So I'll be looking at those travels and I'll be commenting back to you as well. And I hope you're fine, Ali work. So since you are here, and well, I left today. I didn't mention the topic. So the topic is a topic. It's a bit of surprise, but it's not that much of a surprise. So what I plan to talk about, it's something that's very important, and we need to integrate it into our daily lives, and that is, I hope you can guess. Yes, Ali work. I hope you can guess what I aim to talk about. Telepathy. Let's do telepathy. Maybe you can guess what I want to talk about. Okay, no clues? Well, today I plan to talk about self care and practicing self care, which is an integral part of everyone's life, and we need to incorporate it in our daily lives. Naim Suleria, Walaikum Assalam. I hope you're fine and you had a great Rosa today, like every other day. So, अच्छा नहीं मैं कह रहा था दोबारा बताएं ओके क्या चीज़ आपको दोबारा बताऊं आज का जो टॉपिक है वो दोबारा बताऊं ओके आज का जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली अबाउट प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर एंड हाउ यू कैन प्रैक्टिस सेल्फ केयर लाइक सेल्फ केयर इट्स नॉट जस्ट for the mind. In fact, it involves three components. It involves the mind, it involves the spirit, it involves the body. So we are going to talk about this, and I want you to be interactive and share your, your suggestions and your feedback as well. जो आपने बोला अभी वो मेरा ध्यान कहीं और ओके जो मैंने अभी बोला नहीं मैंने जो उससे पहले बोला मैंने उससे पहले ये कहा कि मॉर्निंग में एक शॉर्ट सा व्लॉग मैंने जो है शेयर किया था और उसमें जो है आई शेयर्ड माय ट्रेवल्स टू दुबई एंड आई सेड कि भाई आप लोगों ने भी जहाँ जहाँ ट्रैवल किया हो रिसेंटली या पास में कहीं पर भी इवन विद इन योर ओन कंट्री भी किया हो तो डू शेयर दोज मेमोरीज सो ये है कि चूंकि रमज़ान था तो शायद उस वजह से किसी ने फ़िलहाल उस पर जो है ऐसा कमेंट नहीं किया या शेयर नहीं किया सो आई सेड कि अब अफ्तार हो गया तो यू कैन ऑलवेज गो ऑन द पोस्ट एंड यू कैन शेयर योर कमेंट्स ओवर देयर और योर मेमोरीज ओवर देयर ओके आई होप अब आपको समझ आ गई होगी मैं किस चीज़ के बारे में बात करी थी और अभी जो मैं बात करने लगी हूँ दैट इज़ अबाउट आर टॉपिक टुडे विच इज़ about how to practice self care and why practicing self care is very important. And self care does not mean one thing, it is an important part of our life and it involves three important ingredients which include the mind, the body, and the spirit. So आज हम उस पर बात करेंगे. So अब मैं टॉपिक की तरफ चलती हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक. और सबसे पहले चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आप
आपने ये चीज़ देखनी है कि वाई इज़ सेल्फ केयर इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही उसमें जो है, यानी जब हम कहते हैं सेल्फ केयर, व्हाट डू वी मीन बाय इट? ओके, so self care is basically like you have to take intentional steps. You have to have a conscious mind कि भाई it involves you, it involves your own health, it involves your own, यानी you are concentrating, जान मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम, you are focusing on yourself, you are caring for yourself, and that is a very important thing, and it's a very important task. Okay. Okay. Um, Ali work, what are you saying? Okay, right. So you think I still need light? Okay, I'll just, put on light. So you are not going to let me continue with my session, rather you are going to distract me with different things. Okay. Well, you know, you might be right, but let me just put on this light and let's see. So in the meantime, you can, leave your suggestions regarding self care. फिर मैं जो हूँ उसको मज़ीद जो है आगे बताती हूँ आपको उसके हवाले से. Okay. Is this light better? Now I look like a, light bulb जो ईद के दिनों में जो है चूड़ियों की दुकान में जो है ना बल्ब जगमगा रहे होते हैं, and that's how you feel. So right now that's how I'm feeling. So but I hope कि I might be lightened up as compared to before. ओके ठीक है, अब ठीक है, ओके ठीक है, फाइन, ओके अब सही है, ओके ठीक है. अच्छा, अब जो है ना, अब हम आगे चलती हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड सेल्फ केयर. जब सेल्फ केयर की बात आती है ना, तो सेल्फ केयर इज़ बेसिकली वो कॉन्शियस एफर्ट जो कि हम अपने लिए करते हैं ताकि हम अपनी हेल्थ पे फोकस कर सकें, या हम अपनी डेली रूटीन में कोई ऐसी चीज़ कर सकें जिसमें जो है हम अपने ऊपर तवज्जो दें. क्योंकि आप देखें कि पूरे जो है आपको जो पूरे दिन का स्केड्यूल होता है उसमें दोज पीपल हु आर गोइंग टू वर्क, so they are focusing on going to work and then doing work over there and then coming back home and doing more work. So इस तरीके का जो है एक स्केड्यूल बना होता है. बट देन अगेन ओके, अच्छा ये थोड़ी हो गया, ठीक है. सो इसी तरीके से जो है जो ख़वातीन होती हैं उनके भी जो है यही रूटीन होती है घर में, कि घर में उन्होंने काम करना है. अगर बच्चे हैं तो बच्चों की टेक केयर करनी है, अगर बच्चे स्कूल गोइंग के हैं तो उनकी पिक एंड ड्रॉप करनी है, एंड देन होम चोर्स होते हैं, कुछ भाई के चोर्स होते हैं, एंड देन इन द एंड जिस वक्त दिन एंड होता है तो दे आर वेरी टायर्ड. सो दिस अप्लाइज टू बोथ मेन एंड वेमेन. सो फॉर दैट पर्पज़ आपने जो है अपनी डेली लाइफ में जो है एक स्केड्यूल बनाना होता है, और उस स्केड्यूल में आपने एक टाइम होता है द मी टाइम. So earlier I had a session and I talked about how you can value yourself, या आप किस तरह अपने टेक केयर कर सकते हैं. So that was just one segment, but today I decided to cover this as a whole topic कि why is self care important, और आप उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में inculcate कर सकते हैं. So firstly you need to understand what is self care and how you can take active and conscious efforts to practice this self care. और फिर उसमें जो है सेकेंडली जो चीज़ आ जाती है, यू नीड टू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर. अब जब प्रायोरिटाइजिंग की बात आती है तो प्रायोरिटाइज आपने इसी तरह करना है कि आपकी जो बिज़ी स्केड्यूल है या बिज़ी रूटीन है उसमें आपने कोई एक जो है लम्हा या कोई एक आवर या 1 आवर हो जाए, 2 आवर हो जाए या हाफ एन आवर हो जाए, वो आपने एक्सक्लूसिवली अपने ऊपर जो है उसको फोकस करना है. अब ये इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप उस आवर में क्या करते हैं. आइदर यू जस्ट लाई डाउन और यू जस्ट क्लोज योर आइज़, चाहे जो है सोने से पहले जो है यू जस्ट टेक अ ब्रीफ नैप, ताकि जो है अगर आपके कोई पेंडिंग काम है तो आप वो कर सकें, या यू कैन जस्ट रिलैक्स, यू कैन जस्ट क्लोज योर आई और यू कैन डू एनी थिंग. सो वो मैं आगे मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से आप मज़ीद चीज़ें जो है प्रैक्टिस कर सकती हैं जिससे यू फील रिलैक्स एंड यू फील 100% एंड यू वोंट फील लेथार्जिक एट ऑल. सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर. अच्छा, फिर इसमें जो है ना एक जो चीज़ आ जाती है, यानी अब मैं आपको जो कंपोनेंट्स हैं, बुशरा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग. अब जो मेन कंपोनेंट है दैट इज़ द माइंड. अब जो है आपने जो है सिर्फ जो है सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ केयर क्या होते हैं,
बल्कि उसको किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब माइंड की बात आती है तो माइंड में आप इस तरीके से उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यू कैन डू मेडिटेशन, देन यू कैन डू जर्नलिंग, या यू कैन इंगेज इनटू हॉबीज़। क्योंकि जो क्रिएटिव हॉबीज़ होती हैं किसी भी किस्म की हॉबीज़, यानी इट्स नॉट दैट कि कोई एक पर्टिकुलर हॉबी होगी तो आपका जो है माइंड रिलैक्स होगा। यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड। और वो रिलैक्स माइंड यानी ये नहीं है कि पूरा दिन आप कंप्यूटर के पीछे बैठे रहे और कंप्यूटर से रिलेटेड डिफरेंट टास्क करते रहे, या फिर आप जो है डिफरेंट जो है कोई कोर्सेज में इंगेज है तो वो कोर्सेज करते रहें, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वो स्ट्रेस आउट हो जाएंगी और माइंड भी स्ट्रेस आउट हो जाएगा। सो यू नीड टू रिलैक्स योर माइंड। आपने उसको जो है कोई जिस तरीके से हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, एंड विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट ब्रीथ, सिमिलरली हमारा जो माइंड है उसको भी रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर माइंड को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा वील बर्न आउट। एंड बर्न आउट इन द सेंस कि भाई हम जो काम कर रहे होंगे उसमें भी हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल कम हो जाएगा, सेहत तो ख़राब होएगी होगी, आंखें भी काम नहीं करेंगी। सो फॉर दैट मैटर आपने अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना है जिससे जो है आपका माइंड रिलैक्स हो सके। सो चाहे आप उसमें जर्नलिंग कर लें, चाहे आप उसमें आर्ट्स कर लें, चाहे आप उसमें like you can listen to soft and relaxing music, या चाहे तो आप then there are other things, पर वो स्पिरिट में आएगा। सो आप जो है ना ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, या आप क्या चीज़ ऐसी करते हैं जिससे जो है माइंड रिलैक्स होता है। मतलब बहुत से लोग हैं, उन्होंने अगर माइंड को रिलैक्स करना हो तो वो योगा करते हैं। योगा इन इट सेल्फ इट्स अ कंप्लीट एक्सरसाइज एंड इट रिलैक्सेस द ओवरऑल माइंड बॉडी एंड स्पिरिट एज वेल। सो उसमें जो है आप योगा कर सकते हैं। आप अगेन मेडिटेशन इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ योगा, वो भी आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप जिस जगह कर रहे हैं दैट इज़ कम्प्लीटली साइलेंट एंड देयर इज़ नो शोर और पुल एनीवेयर। So when you are in a relaxing mood and there is silence and you're observing silence, so आप बहुत अच्छे तरीके से माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। एंड देन इसके अलावा जो है रिलैक्सिंग म्यूज़िक, कैल्टिक म्यूज़िक आप जो है सुन सकते हैं यूट्यूब पे। सो यू आर नॉट लुकिंग एट इवन, वैसे अगर आप यूट्यूब पे कैल्टिक म्यूज़िक लगाते हैं एंड यू लुक एट दी पिक्चर, जो नेचर होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी सूदिंग। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच हेल्प यू इन रिलैक्सिंग योर माइंड। सो यू कैन प्रैक्टिस दीज थिंग्स। और इसके अलावा जो है आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको जो है मज़ीद रिलैक्सेशन चाहिए या माइंड रिलैक्स करना चाहिए, या माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, या थेरेपी आप जो है ले सकते हैं जिसमें आपका माइंड रिलैक्स कर सके। सो यू कैन ऑलवेज टॉक टू डिफरेंट काउंसलर्स, जो भी आपके जो है स्ट्रेस लेवल है या जिस की भी आप जो है फील करते हैं कि भी आपको इस चीज़ की नीड है, सो यू कैन talk to the specific या required counselor. ओके, देन उसमें जो है फिर जो है हम बात करते हैं बॉडी की, कि बॉडी में जो है सेल्फ केयर आप किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखें, इंसान जो है एक कंप्लीट कंपोनेंट है। इस तरह नहीं आप कर सकते कि आप इंसान में से जो है माइंड अलग कर दें, बॉडी अलग कर दें, स्पिरिट अलग कर दें, क्योंकि मैन इन इट सेल्फ इज़ अ कंप्लीट होल। तो आप किसी भी चीज़ को अलग नहीं कर सकते, आप उसको सेगमेंटेशन नहीं कर सकते या सेग्रीगेट नहीं कर सकते। ये अलग है कि आप जो है हर चीज़ के लिए जो है एक डिफरेंट टास्क कर सकते हैं उसको जो है एंटरटेन करने के लिए, बट ये है कि ओवरऑल जो है वन टास्क इज़ गोइंग टू इंटर रिलेट विद द अदर वन। ठीक है। सो ये मैंने आपको जो है इसलिए जो है तोड़ के बता रही हूँ कि सॉरी अबाउट दैट। तो ये मैं आपको इसलिए तोड़ के बता रही हूँ कि वो लोग जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी माइंड को रिलैक्स करना है, बॉडी रिलैक्स है, तो वो किस तरह किया जाए। तो दीज आर सम ऑफ द टिप्स जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। पर ये है कि आप जो भी इनमें से जो भी टिप्स जो है अप्लाई करेंगे ना, वो जो है अपेरेंटली इंटर रिलेटेड होंगी और वो एक या दूसरी चीज़ को जो है इफ़ेक्ट करी होंगी, एंड इफ़ेक्टिंग इन द गुड वे। सो दैट्स वाई, इसलिए मैं आपको जो है उसको अलग अलग करके बता रही हूँ कि ये टिप्स आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू बॉडी, तो बॉडी में भी जो बेस्ट आपका तरीका है कि आप किस तरह सेल्फ केयर कर सकते हैं,
you need to do some kind of exercise. Jamil Mughal, thank you so much for joining and watching this session. सो बॉडी के लिए आप जो है फिज़िकली जो है एक्सरसाइज कर सकती हैं. देन आप अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करें, और न्यूट्रिशन में भी उस न्यूट्रिशन पे जो कि हेल्दी ईटिंग की तरफ फोकस करती है, ना कि जो है आप जो है जंक्स की तरफ चले जाएं या फास्ट फूड्स की तरफ चले जाएं या ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाएं जो ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है. लाइक अगर जो है आप में से वो लोग जिनको जो है बीपी है और वो जो है बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाना शुरू कर दें, तो इट्स गोइंग टू इफेक्ट देम ओवरऑल. फरमानुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड वाचिंग दिस सेशन. सो बॉडी के लिए जो है आपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें खानी है, और देन अगेन यू कैन ऑलवेज कंसल्ट योर फैमिली फिजिशियन या जो जनरल फिजिशियन है आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन डिस्कस योर बॉडी रिक्वायरमेंट, या जो भी आपके एलिमेंट्स हैं या सिकनेस है या जो जिस तरीके के हेरिडिटरी डिजीज़ होते हैं आप वो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, और फिर उसके मुताबिक वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी हैं, कौन सी आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं. लाइक अगर कोई जो है हार्ट पेशेंट है तो उनको जो है कभी भी जो है कोई ये नहीं सजेस्ट करेगा कि जी आप फास्ट पेस वॉक करें, या आप जो है एक्सरसाइज जो ट्रेडमिल होते हैं उस पर जो है फास्ट स्पीड पे जो है भागना शुरू कर दें. इट्स नॉट गुड फॉर दी हार्ट सिनेरियो. तो ये है कि आप वॉक कर सकते हैं, आहिस्ता वॉक कर सकते हैं, और ये है कि रुक रुक के कर सकते हैं, क्योंकि जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं उनको बहुत जल्दी सांस चढ़ना शुरू हो जाता है. सो दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, बट इन अ सटल वे. इतना ज़्यादा नहीं कि हार्ट बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सर्ट हो और ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स जो है इंस्टिगेट हो जाए. सो इसके लिए जो है अगर लाइक किसी भी किस्म के जो है, क्योंकि कुछ डिजीज़ होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गई. सो बहुत सी ऐसी भी होती हैं जो हेरिडिटरी नहीं होते और नए नए होते हैं जो उस टाइम पे जो है मंजर आम पे आ रहे होती है. एंड दैट कैन बी द रिजल्ट ऑफ एनीथिंग. मोस्टली जो अब जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं दोज आर सेल्फ इंड्यूस, या फिर जो है दे आर द रिजल्ट ऑफ द फूड इनटेक वी आर टेकिंग. क्योंकि एट टाइम्स वी डू नॉट नो कि भाई हम जो फूड ले रहे हैं उससे किस किस्म की एलर्जी हो सकती है या किस किस्म का साइड रिएक्शन हो सकता है. बट येस, आप जो है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू कम टू नो अबाउट योर बॉडी. सो यू हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स विद द डॉक्टर कि लाइक अगर जो है अगर मुझे कोई मेडिसिन जो प्रॉब्लम देती है तो आई ऑलवेज डिस्कस विद द डॉक्टर कि भाई ये जो 2 मेडिसिन हैं क्या इनके साथ जो है ये मेडिसिन ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती. सो यू हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स. इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट द राइट पर्सन रादर देन सेल्फ इंड्यूसिंग, क्योंकि सेल्फ इंड्यूसिंग भी जो है अच्छा खासा कबाड़ा करा देती है. सो इट्स बेटर कि यू गेट द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल. ओके. सो बॉडी में जो है ये है कि आपने जो है देन क्योंकि आपने ये चीज़ देखनी होती है कि जो स्ट्रेस होते हैं ना, देयर इज़ अ कनेक्शन ऑफ स्ट्रेस बिटवीन बिटवीन योर फिजिकल हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग. सो आपके जो स्ट्रेस होते हैं ना, यू नीड टू टैकल दैट, क्योंकि जब आप स्ट्रेस होते हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ ही बॉडी भी रिएक्ट करी होती है, और बाज़ केसेस में जो है कुछ ज़्यादा ही बॉडी रिएक्ट कर जाती है. एट टाइम इस तरह होता है कि लाइक दिस इज़ अ जनरल ऑब्जर्वेशन, माई जनरल ऑब्जर्वेशन, कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनको कहीं ना कहीं जो है ना वेट का प्रॉब्लम होता है. लाइक हो सकता है उनकी डाइट इतनी ना हो, बट यह है कि वो जो स्ट्रेस ले रहे होते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं उसकी वजह से वो वेट गेन कर रहे हों. एंड देन अगेन जो वो मेडिसिन भी लेते हैं वेट लॉस की, उससे भी वो वेट गेन करते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. वही अगेन इसमें बात आ जाती है, ऑलवेज कंसल्ट अ फिजिशियन, डू नॉट सेल्फ इंड्यूस थिंग्स, क्योंकि लोग एड्स में बहुत कुछ दिखाते हैं. कोई कहेगा कि ये 100% प्रोटीन है, यू डोंट नो कि उस प्रोटीन शेक में क्या है, यू डोंट नो उसमें साइनाइड है कि उसमें कैसे ऐसे जो है पॉइजनस केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी में जाकर जो है रिएक्ट कर जाए. सो नेवर गो फॉर दीज एड्स, या जहाँ पर जो है बहुत जो है फैंसी करके जो है चीज़ें पेश की जाए. लाइक these things happen everywhere. It's not just the medical industry, it's the cosmetic industry, it's the food industry. हर चीज़ में जो है जिस चीज़ में जितना ज़्यादा कलर होगा बस समझ आए कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है. सो ऑलवेज गो with the right person and the right doctor. So consult सही तरीके से जो है रिसर्च करके फिर डॉक्टर के जाए. ऐसे ही जो है किसी भी
नथु कह रहा है कि उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू डोंट नो। फर्स्ट रीड अबाउट देम, रिव्यूज़ देखें लोगों के क्या रिव्यूज़ है। जिस तरह आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसका रिव्यू देखते हैं। अगर आपको हो कि भाई अच्छा जी ये 4 स्टार या 5 स्टार है, तो देन यू गो फॉर दैट प्रोडक्ट। सिमिलरली डॉक्टर्स का भी इस तरह है, दो दे आर नॉट प्रोडक्ट्स, बट इट्स प्रिटी मच प्रैक्टिस एज प्रोडक्ट सर्विस। सो डॉक्टर्स जो है, जो अपने पैसे बनाना चाहते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर कि भाई आगे हमारे इंसान है या हमारे आगे जानवर है। सो फॉर दैट रीज़न be very careful when you're selecting a doctor, and if you know the doctor in and out and आपको जो है पता है कि वो डॉक्टर अच्छे हैं, तो always go to those doctors and you can consult from those doctors कि भाई ये वाला मसला है तो किसके जाना चाहिए। यहाँ पर जो है डॉक्टर तनवीर हैं अलीवर के आईडी से। सो ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ जनरल फिजिशियन। जनरल फिजिशियन से ज़्यादा उनके स्पेशलाइजेशन है, बट ही इज़ अ गुड डॉक्टर, सो यू कैन कंसल्ट हिम इफ़ आपको कोई जो है जनरल इश्यूज़ हैं। तो आई डू कंसल्ट हिम ऑफ एंड ऑन। सो बट अदर देन दैट आईटी में और ऑनलाइन जो है डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक एड्स, उसमें भी जो है ही इज़ रियली गुड। सो यू कैन ऑल्सो कंसल्ट हिम रिगार्डिंग दोज थिंग्स एज वेल। सो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि भाई आप ना स्किल सीखें। अगर आपका एक स्किल है ना, तो स्किल के साथ 3-4 स्किल्स और भी सीखें, ताकि आप उन सारी स्किल्स को यूटिलाइज़ करें हो। सिर्फ ये नहीं कि आपने अपने ज़रिए रोज़गार एक ही स्किल पे जो है रखा हुआ है। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर भी बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट डॉक्टर तनवीर इज़ डूइंग, ही हैज़ लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स। सो यह है कि वो प्रैक्टिस भी करते हैं और बाकी स्किल्स भी करते हैं। सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच यू वट एवर योर रिक्वायरमेंट इज़। अच्छा, ये तो होगी बॉडी की टेक केयर के हवाले से बात। अब आ जाती है स्पिरिट। क्या हम स्पिरिट की किस तरह जो है टेक केयर कर सकती हैं? स्पिरिट क्या होती है? स्पिरिट हमारी रूह है, ठीक है। अब रूह को भी नरिशमेंट चाहिए ना। अब रूह को नरिशमेंट किस तरह मिलेगी? जब बॉडी को हम नरिश करे होंगे तो रूह को भी नरिशमेंट मिलेगी। बट देन अगेन, रूह को अगर आप जो है एक स्टेप हाई देखें, तो रूह की नरिशमेंट क्या है? रूह की नरिशमेंट ये है कि आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो किस तरह चेंज होते हैं, या किस तरह आप क्या ऐसी चीज़ करें हैं कि आप अच्छा फील करें, या आप जो है डिज़ी फील करें या हैवी फील करें। लाइक आई नो कि जब मैं जो हूँ सुबह के टाइम व्लॉगिंग कर रही होती हूँ नेचर में, तो मेरा मूड अपलिफ्ट हो जाता है। सो वो दैट इज़ एलिवेटिंग माई स्पिरिट। एंड देन देर आर सो मैनी अदर थिंग्स स्पिरिट एलिवेट करने के लिए। व्हेन यू लिसन टू द रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान, उससे भी आपका जो स्पिरिट एलिवेट होता है। देन आप जो है जब पढ़ रहे होते हैं कुरान पाक, या आप जो है यूट्यूब पे किसी जो है मुफ्ती वगैरह के जो है कोई कॉल सुन रहे होते हैं, या कोई वीडियो देख रहे होते हैं, या आप जो है वो तालीमात जो कि शायद आपका नॉलेज उसमें नहीं है, आप उस लिहाज से जो है लोगों को जो है पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, तो वो भी आपकी जो है स्पिरिट को एलिवेट करता है। सो दीज, तो जो आपकी स्पिरिट है उसका भी एक बहुत उसका ऑन दी रिलीजियस साइड जो है ना एक कनेक्शन होता है। सो आपने वो कनेक्शन बरकरार रखना होता है। तो इसी तरीके से ये मैं आपको जो है बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो माइंड, बॉडी और स्पिरिट है वो इंटरकनेक्टेड होता है। सो वट एवर थिंग यू आर डूइंग फॉर वन थिंग, इट इज़ बीइंग अप्लाई टू द अदर थिंग। सो जो आप अपनी रूह को तस्कीन के लिए जो नॉलेज ले रहे हैं, या क्रिएटर के साथ जो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, या जो स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इट इज़ हेल्पिंग यू टू बी अ बेटर पर्सन। सो स्पिरिट के लिहाज से अच्छा, फिर इसमें स्पिरिट में एक और चीज़ भी आ जाती है कि यू नीड टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एज वेल। अब जो दौर है उसमें ग्रैटिट्यूड कम है, उसमें शिकवे गिले ज़्यादा हैं। सो रादर देन कि शिकवे गिले करें, शिकवे गिले करने से जो है आपको टॉक्सिक होगे, बॉडी भी इफ़ेक्ट होगी, माइंड भी इफ़ेक्ट होगी, स्पिरिट भी इफ़ेक्ट होगी। तो देन वाई, क्यों ऐसे जो है गिले शिकवों में पड़े रहें? रादर देन कि जो आपके पास है, ट्राई टू बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं होगा, इतना तो है कि यू आर स्टिल सर्वाइविंग, या इतना तो है कि भाई अल्लाह इज़ गिविंग यू अ न्यू डे टू सी, a new day to explore the world in a good way, to have positive thoughts, to meet new people, to make new connections, to foster positive relationships, to motivate people to be on the right path, and
be a source of inspiration for others so they can be on the right path. So you should be grateful for these things rather than कि आप ये चीज़ सोचें कि भाई फलाने के पास गाड़ी है तो मेरे पास गाड़ी नहीं, फलाने के पास इधर घर है तो मेरे पास घर नहीं है. These things are all monetary, these are all materialistic things, and these are all, you know, these are यानी ये वक्ती हैं, temporary things हैं. Nothing is permanent. So permanent क्या है? Permanent is your good behavior, permanent is your gratitude, permanent is your character, permanent is your deeds, and those that are good deeds, not the bad deeds. So ये चीज़ें permanent है. So when you are going to go to your final destination, you need these things. You don't need the bangla and garis. ठीक है? So you have to be a good human being. That is what you need, and for that you need to practice gratitude for what you have. अच्छा देन अच्छा फिर इसमें जो है एक जो चीज़ आ जाती है, यू नीड टू बैलेंस योर प्रायोरिटीज़. अब वो बैलेंसिंग प्रायोरिटीज़ इसी तरीके से आती है कि यू नीड टू ऑफर स्ट्रेटजीज, एंड यू नीड टू मेक स्ट्रेटजीज जहाँ पर आप जो है सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर सकें ऑन डेली रूटीन्स. यानी ये नहीं आप कहेंगे कि भाई सुबह जो है 9 से लेकर 5 तक तो मेरा दफ्तर है, और फिर दफ्तर करने के बाद घर आकर मेरा टीवी टाइम है, और फिर टीवी टाइम के बाद जो है खाना वगैरह वाइंड अप करके फिर सोने का टाइम है. तो इसमें आपका तो सेल्फ केयर कहीं नहीं आया. जो आपने दफ्तर में लगाया टाइम, फिर उसके बाद टीवी पे लगाया, मोबाइल पे लगाया, तो it's not relaxing, it's not practicing self care. Self care में ये है कि you have to lock yourself off the TV, off the mobile, and practice self care in the right way. So इसी तरीके से आप जो है अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बैलेंस कर सकते हैं. एंड देन आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? आप इसके अलावा ये कर सकते हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई आपके काम की नोयत ज़्यादा है, तो देन स्टार्ट डेलीगेटिंग टास्क टू अदर पीपल. जो आपको लगता है कि भाई आपका काम ज़्यादा है और आप किसी और से वो काम करा सकते हैं, तो किसी और से वो काम करा लें. एंड देन वो किसी और से जो आप काम कराएंगे मुफ्ता ना मारें, ठीक है, अगले को उसके जो है पैसे दें और फिर वो काम करा लें. सो दिस इज़ हाउ डेलीगेशन वर्क्स. वो कहते हैं ना कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड. वो तो ठीक है, देयर इज़ नो फ्री लंच, बट ये है कि किसी से जो है आप जो है फ्री में जो है काम कराएं, किसी की जो है अच्छाई देख कर, तो वो भी जो है अच्छी बात नहीं होती. सो देन अगेन दिस इज़ अनदर थिंग जो कि आपके साथ इन द लॉन्ग रन जाएगी, एंड यू डोंट वांट टू गो विद दिस रेपुटेशन कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा था पर मुफ्त काम कराता था. So you want people to remember you in good words, not in bad words. So balancing priorities is very important. You can delegate your work, and then you need to practice this no. अगर भाई आपकी ज़रूरत से ज़्यादा या आपके जो है आपको खुद फील हो रहा है कि भाई मेरे लिए जो है ये काम ज़्यादा हो रहा है, तो start saying no. Start practicing this word no. क्योंकि जब तक आप नो प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो हो सकता है कि आप जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं या आप जो वर्क लोड अपने ऊपर डाल रहे हैं वो आपको वैसे ही बर्न आउट कर दे. सो जो आपके जो बस की बात नहीं है या आपके बस से ज़्यादा है, तो जस्ट से नो कि भाई आई कैन नॉट डू इट. मारूफ रफीक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग दिस सेशन. So in the end, I would like to say that in order to be a complete whole, you need to practice self-care, and self-care applies to all three components, which includes the mind, which includes the body, which includes the spirit. So ये सारी चीज़ें मिलाकर एक इंसान बनाती हैं. So जब तक आप अपने आप पे फोकस नहीं करेंगे, अपनी जो है सेल्फ केयर नहीं करेंगे, तो कोई आपको वो लीवरेज नहीं देगा. कोई आपको नहीं कहेगा अच्छा भी दफ्तर में जो है 2-3 घंटे ऑफ ले लो और जाकर जो है आराम कर लो. सो वो नौबत आने से पहले कि जहाँ पर आपको लीव के लिए अप्लाई करना पड़े, या आपको जो है कोई आपका अफसर कह दे कि नहीं भी अब आप हमारे काम के नहीं हो, या हमने जितनी आपकी सर्विसेज देनी थी, वी डोंट रिक्वायर योर सर्विसेज एनी मोर, जो कि बहुत जो है दिल पे लगती हैं ये जाकर बातें. सो ये है कि ये नौबत आने से पहले आपकी प्रोडक्ट, इससे पहले कि कोई आपको जो है निकाले, इससे बेहतर है कि आप जो है खुद जो है अपने टेक केयर करना शुरू कर दें और किसी को ये मौका ही ना दें कि कोई आपको जो है बाय बाय कह सके. So that was all I wanted to share regarding self care. And now if you have any questions, or if you have any suggestions, do let me know. So I would love to take your suggestions and comments.
और लेट मी जस्ट सी. ओके, राइट नाउ. ओके, एंड नाउ आई कैन नॉट सी एनीवन एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन, जिससे मुझे लगता है कि कोई भी ऑन कैमरा नहीं आना चाहता. सारे इस वक्त जो है बस अवतार करके या सो गए हैं या चुप करके जो है बात सुन रहे हैं. आज तो मैंने जो है ना टॉपिक डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि आई वांटेड इट टू रिमेन सस्पेंस. क्योंकि जब सस्पेंस रहता है तो देन यू पीपल आर मोर इंगेजिंग एंड यू इंटरेक्ट मोर. और जब सस्पेंस नहीं रहता तो देन यू नो कि भाई किस चीज़ पे बात हो रही है. बट दैट इज़ ऑल्सो गुड. वंस इन अ ब्लू मून वो भी कर लेना चाहिए, पर इस तरह भी कर लेना चाहिए. So that was all regarding this topic, how to practice self care and why is self care important. So कल जो है दोबारा हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंसाइट के साथ, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो. एंड इन द मीन टाइम जो मॉर्निंग में मैंने व्लॉग किया था और आपसे कहा था कि भाई आपके कोई भी ट्रैवल इंसिडेंट्स हैं या कोई ट्रैवल मेमोरीज हैं एंड यू वांट टू शेयर देम, सो यू कैन ऑलवेज शेयर दोज मेमोरीज. So inshallah, most probably I'll come live in the evening if not in the morning. um, but then till then, bye bye and take care. Allah Hafiz.